500 plus doctors have refused to join government job. Okay, according to the latest report, Maharashtra government has cancelled the appointment of 500 plus doctors after they refrained from joining the job. Okay, now why is this happening, and if this is actually happening, is Maharashtra public healthcare system on the verge of collapse? What will happen after this if they actually don't join, or if all these seats remain vacant for the coming time? I, Dr. Rachna Kale, will discuss this issue today. Okay. Now, first of all, if so many doctors are not available in the hospitals, what does this mean? This means patients are waiting not for days but for months for the treatment. Okay, surgeries are being delayed, at times not taking place only. Okay, all the hospitals are understaffed, and the rural healthcare systems are only becoming the referral centers. That means they are just sending the patients from the rural areas to the urban centers, so there is no treatment taking place at the rural centers. Now, when did it start? Okay, the government of Maharashtra had opened the recruitment for Group A medical officers for the posts of gynecologists, surgeons, pediatricians for the rural health sectors. Okay, now people applied for this job and they were selected even, but the selection list was made available 6 months after the after the procedure. Now the recruitment had opened in the month of January 2024 और इसका रिजल्ट उन्होंने निकालते निकालते कर दिया जून 24. Okay, that means it actually took 6 months for them to come up with the appointment letters. After this, the doctors were supposed to join the job, which they did not join in the given time frame, and finally the government had to cancel their appointments. And अभी बोल रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स होंगे उनको आगे बढ़ाएंगे. But ये this is the secondary procedure which will happen. But what will immediately happen is many of the rural hospitals have already stopped, okay, doing C-sections क्योंकि उनके पास gynecologist नहीं है. एक रिपोर्ट ये भी कहता है कि नियरली 50% ऑफ द सीनियर डॉक्टर्स का जो पोजीशन है वो वेकेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में. ओके, रूटीन सर्जरीज नहीं हो पा रही है, and nearly half of the districts of the state, okay, they do not have a proper staff working in the rural health system. Okay, rural health center अभी without proper care, या तो आपको पेशेंट्स को अर्बन सेंटर को भेजना है, या उसका एंड रिजल्ट ये हो रहा है कि स्टेट में स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज है जैसे नंदुरबार हुआ या चंद्रपुर हुआ, उधर में आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ओके, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये सारे जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि रूरल हेल्थ सेंटर्स इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द destination for a treatment are just becoming by roads. They are just trying to send or divert the traffic of the patients to the urban centers. अभी पहला चीज तो ये आता है कि why have doctors refused to join the job. Okay, गवर्नमेंट जॉब था, नॉर्मली तो कोई मना नहीं करता, ऐसे लोगों को लगता होगा. बावजूद उसके अगर इतने सारे लोगों ने मना किया है ज्वाइन करने से, डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ रीजन. व्हेन आस्क्ड अबाउट द सेम टू द डॉक्टर्स, उनका ये कहना था कि लो पे पैकेज पहली चीज़, फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और रूरल सेंटर्स में ऑलरेडी स्टाफ कम होता है, सो उनके ऊपर वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है. दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. इन सब कारणों की वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया. और स्पेशली ये भी कहना था डॉक्टर्स का कि दे टुक वेरी लॉन्ग टाइम टू कम अप विद द रिजल्ट्स. मतलब 6 महीने के बाद जब गवर्नमेंट ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए तब तक उन लोगों ने ऑलरेडी दूसरा जॉब ले चुका था. तो दैट वाज द रीज़न. द long time frame taken by the government led them to take up different jobs and did not wait for the government jobs. अभी इसका मतलब क्या हुआ? Does this mean that Maharashtra's infrastructure is not developed? Okay, medical infrastructure rather.
The answer is very clearly no. Okay, because we all know Maharashtra is one of the developed state in India. Infrastructure is very high class and the technology is a cutting edge. Okay, then what is the problem? Okay, even if we look at the public health system or the medical health structure of the healthcare structure of the state, it is very vast and complex, but at the same time it is very well structured. The public health system is conveniently or nicely differentiated between primary health centers, then you have community health centers, and you also have district hospitals and tertiary centers. Okay, so the burden is divided between these centers very, very effectively. And then private health sector, private sector is also very well developed, in fact quite developed than any other state in the country. फिर उसके बाद भी हमको ये प्रॉब्लम क्यों होती है डिस्पाइट दिस एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर इन महाराष्ट्र? व्हाई आर वी इनटू दिस प्रॉब्लम? नियरली ऑल द सेंटर्स यहाँ पर 50% जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर का जो स्टाफ है, 50% ऑफ द डॉक्टर्स आर नॉट देयर, पोजीशंस लाइंग वेकेंट, नर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि पैरामेडिकल स्टाफ की भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है. अभी ये क्यों हो रहा है? और ये क्या अभी ही हो रहा है? नो, दिस इज अ रिपीटेटिव फेनोमेनन हैपनिंग इन महाराष्ट्र. ये पहले भी हुआ था, 2022 में भी सेम केस हुआ था. दैट टाइम ऑल्सो द रिपोर्ट सेड दैट फॉर 48 to 50% ऑफ द positions are lying vacant in the public health system. और इसके वजह से जो है गवर्नमेंट ने अपना बजट भी बढ़ाया है. मतलब नाउ इफ वी आस्क द सेकेंड क्वेश्चन कि गवर्नमेंट इसके लिए बजट कितना एलोकेट कर रही है, दैट ऑल्सो वी नो इट इज़ वेरी हाई. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एस्टिमेट फॉर दिस करंट ईयर 24-25 के लिए 3.9 का एस्टिमेट रखा है आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट फॉर दिस, स्पेसिफिकली फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम और द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द स्टेट. उसके बाद भी ये हो रहा है. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? नोबडी अंडरस्टैंड्स. क्या डॉक्टर्स कम है स्टेट में? ये भी अगर हम लोग देखते हैं तो इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, ओके, throughout the country there are around 15 lakhs doctors, registered medical practitioners. Okay, जो स्टेट इंक्लूडिंग द नेशनल काउंसिल को भी रजिस्टर्ड होंगे या वो स्टेट काउंसिल को रजिस्टर्ड होंगे, बट द टोटल नंबर स्टैंड्स एट 15 लाख. अभी WHO का जो स्टैंडर्ड कहता है विच सेज दैट फॉर एवरी 1000 पेशेंट्स देयर शुड बी 1 डॉक्टर. तो वी आर वेरी कन्वीनियंटली मीटिंग दिस स्टैंडर्ड. इसमें हम लोगों ने अभी आयुष डॉक्टर्स की तो एडिशन की ही नहीं है, जो लगभग होते हैं 6 लाख के करीब. ओके, दिस इज द करंट डेटा. एंड इफ यू लुक एट महाराष्ट्र, इवन अभी ये जो 15 लाख का जो डेटा हमने दिया हुआ है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, उसमें से महाराष्ट्र स्टैंड्स एट नंबर 1. ओके, देन कम्स योर तमिलनाडु और उसके बाद है आपका कर्नाटका. whatever it is, but Maharashtra is at number 1. So ये number 1 state है जहाँ पे maximum number of doctors registered है. उसके बाद भी why is this condition of the public health system in the state? ये एक question है जो हमको पूछना चाहिए अपने आप से भी, और डिस्कस करके इसका एक सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है. ये स्टैंडर्ड तो हम लोग मीट कर चुके हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो खर्चा है, एवरी ईयर द स्टेट इज स्पेंडिंग टू मच ऑफ इट्स बजट ऑन द मेडिकल एजुकेशन इवन. ओके, अगर हम लोग डॉक्टर हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, कर्नाटका के साथ में. ओके, तमिलनाडु भी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है वहाँ पे. सो एवरी ईयर, एंड ये एवरी ईयर प्रोपोर्शनली इंक्रीज भी हो रहे हैं क्योंकि एवरी ईयर सो मेनी हॉस्पिटल्स, सो मेनी मेडिकल कॉलेजेस आर कमिंग अप. तो इसके वजह से ईयर ऑन ईयर ये नंबर तो एडिशन होते ही जा रहा है. एंड ये कब है? व्हेन वी हैव ऑलरेडी मेट द स्टैंडर्ड्स. ओके, व्हेन वी हैव ऑलरेडी मेट द WHO का स्टैंडर्ड्स, उसके बावजूद भी हम लोगों के पास नंबर इंक्रीज होता जा रहा है. नाउ
what could be the possible solution for this problem? क्या हमको डॉक्टर्स को दिए हुए सैलरीज एंड इंसेंटिव्स को बढ़ाना चाहिए? शुड वी ऑफर देम सम परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस, और रूरल पोस्टिंग के कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलने चाहिए, समथिंग लाइक दिस. ओके, या we concentrate more on the infrastructure development of the rural health centers. This is also an important step. Thirdly, can we or should we divert all the resources towards developing the health sector of the state rather than just go on expanding the existing one? Okay, हम लोग बाहर से funds भी लेके आते हैं. Recently Netherlands had funded Maharashtra state, okay, crores and crores of rupees. तो ये जो है इसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले जो है उसको डेवलप करना चाहिए या उसको एक्सपैंड करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. वी हैव इनिशिएटेड अ व्हाट्सएप कम्युनिटी टू डिस्कस द सेम इशू. अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द डिस्कशन ऑन द सेम, प्लीज़ ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, सो दैट वी कैन शेयर our ideas and discuss and maybe possibly come up with a solution. Thank you.